शुरू करते ही ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੇਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਹੈ which is among the following is the only है अभी लगाए रखनी है भी ये only internal organ है ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बहुत कीमती पॉइंट है। रीजनरेट का मतलब की होंगे भी मान लो वो ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन मतलब आप कहते कट्टिया वड्या गया सट हो बच्ची डैमेज हो गया तो वो दोबारे मतलब रीजनरेट हो जाऊगा। इस सवाल का मतलब यही है तो कहते केड़ा ऑर्गन है तो याद रखना है वो अपना ऑर्गन हैगा जी लीवर। लीवर दे विच एक सैल हुंदे है हैपेटिक सैल HEPATIC उन्हें सब तो ਵੱਧ पावर हुंदी है रीजनरेशन दी। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਲੀਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ मतलब ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੱਟ ਵੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਗਲੈਂਡ ਲੀਵਰ ਆਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਗਲੈਂਡ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ मतलब ਜੂਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ। ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਲੀਵਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਲਿਖ ਰੱਖ ਲਓ ਲੀਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨ। ਆ ਵਰਡ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਰਜੈਸਟ इंटरनल ऑर्गन है। जेकर वर्ड इंटरनल नहीं हैगा तो स्टेटमेंट गलत हो जानी है, ये चीज आप याद रखनी है। ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जे मान लो सिंपल पा देना हो भी लार्जेस्ट ऑर्गन केड़ा है तो अपना स्किन होगा चमड़ी, क्योंकि स्किन भी अपना एक ऑर्गन ही है। जे ओवरऑल पूछदी है भी लार्जेस्ट ऑर्गन केड़ा है तो आप टिक ला देंगे स्किन है। ते पूछे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन केड़ा है अपना लीवर है जेड़ा कि रीजनरेट आप लिखना विच कैन रीजनरेट। एक ऑर्गन अपना यह भी है जेड़ा कि एक बार जो डैमेज हो गया वो रीजनरेट नहीं हुंदा तो वो अपना हुंदा है ब्रेन। ये याद रख लो भी जे केरा एक बार दिमाग हिल गया तो समझ लो फिर हिल गया, ये मुड़ के ठीक नहीं हुंदा, ये सैट नहीं होना, क्योंकि ब्रेन की सब तो घट रीजनरेटिंग पावर हुंदी है, लीवर की सब तो वध हुंदी है। तो बाकी लीवर नूं अपना स्टोर रूम भी कह दिंदे हैं, ये भी याद रखना है। ये अपनी बॉडी का स्टोर रूम है। काफी इत्थे मतलब अपने विटामिन है वो भी बनते हैं, वो भी इत्थे स्टोर होंगे, अपना खाना स्टोर होंगे, मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में काफी कुछ होंगे। तो आप याद रखना है, ये सारे कीमती पॉइंट है। बेस्ट क्वेश्चन याद रखियो, आम तौर पर सवाल पेपर च अपना यही बनता है जो अपना बनया हुआ। ठीक है, चलो भी अगला फिर आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Who among the following attended all the 3 round table conference? ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ मतलब ਆਪਦੇ ਲੰਡਨ ਸੈਂਟ ਜੇਮਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ RTC 12 ਨਵੰਬਰ 1933। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਥੋੜੇ ਯਾਦ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਚਿਪਕੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਮੇਜ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 वाली। यही कीमती है। पर इत्थे सवाल की है, इत्थे सवाल की है बई इत्थे सवाल है भी अच्छा भी किने अटेंड कीती है। वो आप क्लास मेरे हिसाब नाल देखिया हुआ है गांधी दा कल्ला सैकंड च गया सी आ भी नहीं गया तो कुल मिला के आंसर आऊगा B and 3 2 and 3। इत्थे ना Z दी थां ते J पा लियो। ये तेज बहादुर सप्रू है ते तेज बहादुर सप्रू ये वही है ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋर्ट 1928 ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਹੈ। ਤੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ is for Indians। India is for Indians। ठीक है, ये सारे कीमती पॉइंट याद रखियो। इकलौते 2 बंदे किहड़े है जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सारियां अटेंड कीतियां वो B and 3 है। ठीक है, चलो भी सवाल नंबर आप देखते हैं तीजा।
कहते किहड़ी अमेंडमेंट तहत सिक्किम नवी स्टेट बनी है। ये मेरे हिसाब नाल जो आपां सारियां क्लासां आपां लाइयां होईयां अमेंडमेंट वालियां तां उत्थे पक्का बकायदा आपां चार्ट बना के लिखिया होया है। तो याद रखियो सिक्किम बनी है जी अपने 36वीं अमेंडमेंट 1975 के तहत ये अपने हिंदुस्तान च स्टेट डिक्लेयर हो गई सी। जो कुछ पूछा भी सिक्किम स्टेट डे कदों बनाया जाता है तो वह भी याद रख लियो 16 मई की गल है, ठीक है। 16 मई को बनाया जाता है सिक्किम स्टेट डे। जिवें अपने 1 नवंबर को बनी सी अपनी पंजाब मतलब बनया मतलब आपकी टैरेटरियां हद्दां अपनियां 1 नवंबर 1966 को दोबारे रीऑर्गेनाइज की गई सी। उस तरीके 16 मई की गल है 36वीं अमेंडमेंट 1975 के तहत। चलो मैं इतने 2 अमेंडमेंट होर लिखाना है वो पेपर हिसाब नाल बड़ियां कीमती होंदियां। एक तो अपने है 10वीं अमेंडमेंट 1961, एक अपनी हैगी 12वीं अमेंडमेंट 1962। इस सिक्किम के नाल नाल आ दोनों याद कर लियो, पूरा चांस है पेपर पूछ सकते हैं। 10वीं अमेंडमेंट 1961 के तहत की होया सीगा, इहदे तहत होया सीगा जी अपना दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली was declared as union territory। केड़ी अमेंडमेंट है? 10वीं अमेंडमेंट 1961 है, 12वीं अमेंडमेंट 1962 है। इस तहत की होया सी ये भी चीज आपां याद रखनी है। इस तहत होया सी गोवा कॉमा दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव ये दोनों अपने की बना दित्तियां गईयां सीगियां यूनियन टैरेटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टैरेटरी ऑफ इंडिया। तुहानूं पता ही है भी गोवा पहला यूटी बनया ते गोवा 1987 दे विच स्टेट बना दित्ती गई है। समझे? ये कीमती पॉइंट आपां रखने हैं याद। ते इत्थे कुछ आपां नूं सिक्किम, तो सिक्किम बनी है 36वीं अमेंडमेंट 1975 तहत स्टेट। चलो क्वेश्चन नंबर अपना चौथा। हाँ ਇਹਦਾ मतलब बड़ा कन्फ्यूजन होया, सारे बहुत कन्फ्यूज हुए है भी ये किहे सवाल सीगा। सानू पता की हो गया भी आपां बॉडी संविधान च पढ़ी तो है नहीं, क्योंकि ये बॉडी संविधान च क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि संविधान च है ही नहीं। मैं किथों पढ़ादा बई? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ये बॉडी अपने संविधान दे विच नहीं हैगी, ये बॉडी अपने संविधान च नहीं। जद कि हाँ पूछ सकते हैं ये बॉडी कदों बनी है? ये बॉडी बनी है 1964 च बनी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किहदे कहण ते बनी है? केड़ा स्पेशल कमीशन बनया सीगा वो भी आपां लिख लेने हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथनम कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथनम कमेटी, के संथनम कमेटी। समझ गए? ये चीज आपां रखनी है याद। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ मतलब एक बॉडी बनी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिवें सेम बॉडी है जिवें अपना इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो 3 बंदे होंगे है, ऐसी अपने 3 बंदे है टोटल। एक होंदा अपना इन्हां दा मेन कमिश्नर होंदा है ते 2 नाल विजिलेंस कमिश्नर होंदे है। जिवें एक अपना चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंदा है, 2 नाल इलैक्शन कमिश्नर होंदे है, जमा सेम स्ट्रक्चर है। पर इत्थे पुछया अपना टर्म याद रखियो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की टर्म 4 साल की होंदी है ते 65 साल इन्हां दी रिटायरमेंट एज होंदी है। ठीक है, 4 साल ते 65 साल रिटायरमेंट एज दोनों विचों जिहड़ी चीज पहला हो जे तां ओहदी आपदा है की है रिटायरमेंट, मतलब आपदा रेजिग्नेशन ला लो, कुछ मर्जी ला लो, मतलब टाइम पीरियड पूरा हो जाऊगा। तो याद रखना है। तो इत्थे अपना आंसर आऊगा 4 ईयर्स। आमतौर पर मैं देखा सीगा अपना कोई टेक 5 ईयर भी ला रहा है, कोई 6 ईयर कैग वाला भी ला रहा है, पर इत्थे आऊगा 4 ईयर्स। आ पॉइंट पर कीमती है, याद रखियो, नोट कर लियो। वीडियो ਨੂੰ पॉज कर लिया करो, ठीक है। कई बार हुंदा तुसीं याद भी मैं मतलब अभी स्लाइड ते छेती पहुंच जाना हुंदा जी, वीडियो पॉज कर लिया करो। चलो भी क्वेश्चन नंबर फिर अपना आ गया 5वां। सागर मत्था इज द अनदर नेम ऑफ, ये आपां ज्योग्राफी च आपां देखिया होगा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कॉन्टिनेंट वाइज ਆਪਾਂ हर मतलब हर कॉन्टिनेंट का, फॉर एग्जांपल आप देखा सी एशिया का हाईएस्ट पीक किहड़ी है? एशिया की हाईएस्ट पीक किहड़ी सी अपनी? माउंट एवरेस्ट। किहड़ी सी? माउंट एवरेस्ट। ते लोएस्ट किहड़ी सी अपनी? डेड सी। एशिया का लोएस्ट पॉइंट किहड़ा है? डेड सी। हाईएस्ट पॉइंट किहड़ा है? माउंट एवरेस्ट। कल्ला एशिया का क्यों याद रखना है? माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सब तो हाईएस्ट पीक है, 8848 मीटर दी, 8848 मीटर। कई बार ना पेपर च मतलब पूछते फीट पूछते किन्ने फीट, वो रखना बहुत सौखा है। फीट 29,029 फीट,
ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਟ ਚ ਆਪਾਂ 29 ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ 8848 ਮੀਟਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੇਪਾਲ ਚ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੇਪਾਲ ਚ। ਤੇ ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਮੋਲੁੰਗਮਾ। ਚੋਮੋਲੁੰਗਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚੋਮੋਲੁੰਗਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੋਮੋਲੁੰਗਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੋਮੋਲੁੰਗਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਮੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਮੋਲੁੰਗਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਚਲੋ, ट्राइबल एरियाज ऑफ विच स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। आ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत नाल यूनिक सवाल है। ये कोशिश करो नाल जिथे तुसीं पॉलिटिक कीती हुई है उस सूची च ऐड कर लियो। जदों आपां सारे शेड्यूल पढ़दे हुंदे हैं, आपां दे शेड्यूल नंबर 1 च की सीगा? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल नंबर 2 च की सीगा? अपनियां सारियां सैलरीज। 3 च की सीगा? अपनियां सारियां सौहां आ गईयां, अपने ओथ्स एंड एफर्मेशंस आ जांदे। ठीक है, फिर शेड्यूल नंबर 4 च की सीगा? एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स इन राज्य सभा। सीटां दी वंड कीती हुई है राज्य सभा दे विच। फिर मैं तुहानूं कहना हुंदा है कि सूची नंबर 5वीं ते 6वीं बहुत कीमती है, क्योंकि सूची नंबर 5वीं च की हुंदा है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। ठीक है, ये अपना सूची नंबर 5 विच हुंदा है। ते सूची नंबर 6 च भी यही हुंदा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर पिछे हुंदे हैं ते नखर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इस संविधान की किहड़ी सूची है? 6वीं सूची है। पर इत्थे सवाल की पूछा है? आपां लिखिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये कहंदे किहड़ियां? ये कहंदे नॉर्थ ईस्टर्न दियां किहड़ियां स्टेटां? भाई किहड़ियां वो दसना आपां, क्योंकि सारियां नहीं हैगियां। तां इहदा अपना आंसर आऊगा असम, मेघालय, त्रिपुरा ते मिजोरम। आ 4 स्टेटां इनकलूड है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, AMTM ਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। AMTM 2-4 बार पढ़ोगे ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, घबराओ ना बाकी। चलो भी मिलते हैं अगले सवाल दे विच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੈਫਨ ਆਈਲੈਂਡ? ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੈਫਨ ਆਈਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ? ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਘੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ। ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? ਗ੍ਰੀਨ। ਸੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ? ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਉਹ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ। ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਰੀਟਰੀ। It is the territory of Denmark। ये डेनमार्क दी टेरिटरी है, ये चीज आपां याद रखनी है। ठीक है, ग्रीनलैंड ये टेरिटरी है अपनी डेनमार्क दी। ठीक है, चलो भाई
अगला सवाल 8वां आ गया ना। कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत कीमती सवाल लग्या भी, मतलब नॉलेज वाला सवाल सीगा। जेकर तुसी आर्टिकल नंबर वधिया तरीके नाल जाणदे हो तां इहनूं सॉल्व कर सकोगे। कहंदे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾर्ट नहीं हैगा ਆਪਣੇ यूनियन एग्जीक्यूटिव ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ आर्टिकल ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ पार्ट नंबर 5 ਦੀ। पार्ट नंबर 5 ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ? यूनियन। टोटल किन्ने आर्टिकल सी? 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 151। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ? 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ? आर्टिकल नंबर 52 आ गया। 52 एच की है देयर शैल बी प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। फिर आर्टिकल नंबर 63 आ गया देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। फिर आर्टिकल नंबर 75 आ गया देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर इंडिया। फिर आर्टिकल नंबर 76 आ गया एच की सी अटॉर्नी जनरल। आ सारे एग्जीक्यूटिव दा पार्ट ने ये चारे दिते हुए ने। मतलब आंसर आ गया फिर अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्ट नहीं हैगा। कारण है वैसे ही कह रहे हैं ਆਪਾਂ क्योंकि ये पार्ट 5वें ਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल नंबर 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147 124 ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट with its chief justice of India। ठीक है, ये सारे आर्टिकल नंबर याद कर लियो कि प्रधानमंत्री एंड हिज मिनिस्टर्स केड़े आर्टिकल दे विच है, अटॉर्नी जनरल है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस है, ये सारियां पोस्टां आपको पता होणियां चाहिए। ठीक है, चलो भी अगेन जे आपां बहुत एक बारी बस एक बारी जेकर आपां ध्यान नाल सारे ऑप्शन पढ़ लईए आपां आराम नाल छांट लांगे आराम नाल। इदों सौखा सवाल ही नहीं सी पर ये भी काफी इन्ने गलत कीता होया। कमाल तां इह है कहते which among the following does not come under fundamental duty। ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ फंडामेंटल ड्यूटी ਆਉਂਦੀਆਂ नहीं ਆਉਂਦੀਆਂ फिर भी टिक ला सकते हैं क्योंकि पढ़ के देख लो। चलो ठीक है, आ भी हो सकता टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स abolition of untouchability। बस जे तुसी ये नहीं पढ़िया तुसी आता पढ़िया होगा ना भी abolition of untouchability आपां कित्थे पढ़दे हैं? पार्ट नंबर 3 च पढ़दे हैं जिन्हों बोलते हैं आपां फंडामेंटल राइट्स। टोटल कितने आर्टिकल है? 12 तो लेके 35। ये आपां कित्थों बोरो करे है? यूएसए तो। इहनूं फिर आपां डिवाइड कीता सी पहली कैटेगरी दे विच जिन्हों आपां की बोलते हैं? राइट टू इक्वैलिटी। राइट टू इक्वैलिटी कितने आर्टिकल है? 14 तो लेके 18। ते आर्टिकल नंबर 17 दे विच की दिता होया है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 18 च की दिता होया है? नाल वो भी दस देना मैं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये सारे आपां पॉइंट देखे हुए है पेपर हिसाब नाल, बड़े ही कीमती है। ठीक है, याद रख लो। हुण बाकी आपने पढ़ा होवे ना पढ़िया होवे ऑप्शन तो आपां एलिमिनेट कर सकते हैं ना। जेकर अपनी एक चीज बड़ी हुई दोनों विचों ऐ पेपर च पुछणगे बस अपन सोनू पक्का विच एक फंडामेंटल राइट देणगे पक्का, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾर्ट पक्का कर लो, आ सवाल तो नाल ही हो जा करू अपने। ठीक है, चलो सवाल नंबर आप 10वां देखते हैं। जीएसटी टेस्ट दे टैक्स दे रिगार्डिंग तो मैं तुहानूं दस्सिया होया है यार। जे तुसीं हले भी आ सवाल गलत करते हो फिर तो बस अपना समझ लो मतलब की है काम जमी टेढ़ा, पढ़ाई वाल ध्यान अपना जमी नहीं हो सकता। तुक्का ही मारना होवे तुक्का भी जीएसटी पहली बार कित्थे आया? दस्सण दी लोड़ ही नहीं यार, फ्रांस च आया। जीएसटी पहली बार कित्थे आया? फ्रांस च। वैट कित्थे आया? फ्रांस च। लास्ट टेस्ट आपां देखिया सी ना गाफा टैक्स कित्थे आया? गफा वो भी फ्रांस च ही आया, फ्रांस च है। अपने हिंदुस्तान च जीएसटी कदों लागू होया बई ओए? अपने हिंदुस्तान च लागू होया 1 जुलाई 2017 नूं। 1 जुलाई 2017 नूं। इतना सवाल पेपर च जाके पूछ सकते हैं। हाँ, इतने सवाल सिंपल है कि जीएसटी पहली बार कित्थे आया? फ्रांस। जे पूछा जेड़ा अपना इंडियन मॉडल है, जेड़ा अपना इंडियन मॉडल है मतलब अपने जिवें हिंदुस्तान च जीएसटी लागू किया गया है वो आपां किहड़े मुल्क दी तर्ज ते कीता है?
अपने जीएसटी का किहड़ा मॉडल है, तो आप टिक लावांगे कनेडा वाला। इंडिया का जीएसटी का किहड़ा मॉडल है, याद रखियो कनेडियन मॉडल। किहड़ा मॉडल है, कनेडियन मॉडल। कनेडियन मॉडल अपने हिंदुस्तान जीएसटी का। ये बड़ा कीमती सवाल बन सकता। हाँ जी, जीएसटी स्लैब्स पूछना पणू भी जीएसटी दे कितनियां स्लैब्स ने टैक्स वालियां, तो तुहानू 4 ऑप्शन है, पक्का क्वेश्चन याद रखियो। एक 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, ते कुछ समान ते तां 28% भी है। अपनी जीएसटी दियां स्लैब्स याद रख लियो, ठीक है। 5 है मतलब किसी ते है ही नहीं कोई टैक्स, वो 0% है। 5, 12, 18। एक ना जीएसटी दे रिगार्डिंग अखबारां ते एक बॉडी आउंदी है, आर्टिकल नंबर याद रख लियो, आर्टिकल नंबर 279A। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, जीएसटी काउंसिल। बस ये पॉइंट याद रख लो भी जीएसटी काउंसिल परिषद संविधान के किहड़े आर्टिकल च है, 279। ये सिंपल है भी जीएसटी का रिगार्डिंग कोई भी फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये जीएसटी के रिगार्डिंग की है, डिसीजन मेकिंग बॉडी। कोई भी फैसला लेना जीएसटी के रिगार्डिंग, चाहे स्लैबां दा होवे, टैक्स हो, कुछ मर्जी होवे, तो ये बॉडी टैक्स लऊगी। तो ये बॉडी किहड़े आर्टिकल च है, 279A च है। जे पूछया इस बॉडी का फिर हेड कौन है, पक्का पूछणगे, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फलाना धमका। याद रखियो एदा हेड होगा अपना यूनियन मतलब केंद्र, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एदा हेड हो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये सारे सवाल रखने आप याद। चलो भी, Which of the following showed a tribute? एक ट्रिब्यूट दिता, मान सम्मान दिता रानी लक्ष्मी बाई नू। हुण देखो गाहां सवाल पढ़न दी लोड़ ही नहीं। रानी लक्ष्मी बाई नू कहंदे ट्रिब्यूट दिता, कहंदे हेयर ले द वुमन, कहंदे आ पई आ वुमन जिहड़ी कि इन्हां सारिਆਂ दे विच मर्द सी, मतलब मुकाबला कीता है। एक औरत होने के बावजूद जंग वाले मैदान च पैर धरिया, ਉਹਦੀ बहादुरी ਨੂੰ सलाम कीता है। किने कीता है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਬਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਤੇ ਗੋਰਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਰ ਹਿਊਗ ਰੋਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 2, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬਖਤ ਖਾਨ, ਫਿਰ 2 ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, जॉन निकलसन। ये अपने दिल्ली तो जॉन निकलसन, ते फिर अपना आ गया हडसन, ये अपने दिल्ली तो सी है ना। फिर आ कॉलिन कैंपबल आ गया कानपुर वाला, ये भी याद रखियो। ये विकास दुबे कानपुर वाला। इत्थे पर अपना सवाल सौखा है, सीधी गल है। हुण जिहदा राणी लक्ष्मी बाई नाल मुकाबला होगा, हुण कमेंट फिर उही बंदा मारू, होर किसी ने कमेंट मार के की करना है। जिहदा मुकाबला होया, जिहदे नाल भैड़ी कीती है, उही बंदा कहूगा भी कहण दी औरत सी पर जान तां मर्दा नहीं सी, ठीक है। चलो आ काफी सिंपल सवाल है, डिस्कस करने की लोड़ भी नहीं है सवाल यार। सीधा साल पूछा हुआ है, तुहानूं पता ही है भी नेहरू कमेटी जिन्हों बोलते हैं आपां नेहरू रिपोर्ट, ये पब्लिश की गई है, सामने लियांदी गई है 1928 दे विच। याद है इदों पहला की हो गया सीगा, सैमन कमीशन दे पड़ाके पै गए सी, पड़ाके। ते ये भी याद रख लियो भी पड़ाके फिर इहदे च भी पै गए सी ना, क्योंकि इत्थे हिंदू ते मुस्लिम दा आपस दे विच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया सी। ये भी चीज फिर आपां रखनी है याद। फिर उस बाद आपां लाहौर सैशन 1929 दे विच आपां पूर्ण स्वराज दी मंग कर ली। इत्थे अपना 27 आऊगा, ठीक है। 1927 च अपना सैमन कमीशन अपॉइंट किया गया, 28 च नेहरू रिपोर्ट बना दी गई है, लाहौर सैशन 1929 वाला है। फिर अपना डांडी मार्च है, फिर अपना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, फिर अपना गांधी इरविन पैक्ट है, फिर अपना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, फिर अपना कम्यूनल अवार्ड है, फिर अपना गांधी अंबेडकर पैक्ट है, जिन्होंने बोलते हैं पूना पैक्ट यरवड़ा जेल दे विच। सारे पॉइंट रखियो याद। उसका आंसर क्या होगा 1928। Which among the following site has yielded the cultural remains? आ देखो कल्चरल रिमेन्स, कहते कल्चर दा कहते इहदे विचों किहड़ी साइट तो आपां नूं कल्चर बारे पता लगे, कित्थों दा कल्चर, वो भी
ਆ ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਯਾਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਨ ਏਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ, ਫਿਰ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ, ਫਿਰ ਨੀਓਲਿਥਿਕ। ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਮੁਲਕ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਹੜੱਪਣ ਯੁੱਗ, ਹੜੱਪਾ ਐਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल, बहुत कीमती पॉइंट दिखा रहा है मैं, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये केड़ी है? ये पाकिस्तान बलूचिस्तान दे विच है। केड़ी? मेहरगढ़। केड़ी है? मेहरगढ़। ये ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर साइट है अपने इंडियन सब को। हाँ जी पूछा इत्थे खेती कादी करी गई, लिख लो वीट, बारले। ये दोनों का इत्थे काम बहुत, कॉटन लिखो नाल, वीट, बारले ते अपना कॉटन। कणक कुणक हो गया, अपनी वीट हो गया, अपना बारले हो गया ते अपनी कॉटन। इधर राइस नहीं आया। सुनो आए चार ऑप्शन देके उलझा के पूछ सकते हैं भी मेहरगढ़ तो आपां नूं केड़ी खेती दा आपां नूं की मिलिया, एविडेंस मिलिया। ते पॉइंट रखियो याद, ठीक है। मेहरगढ़ आंसर आऊगा। कहते केड़ी रिवर इक्वेटर नूं 2 बारी क्रॉस करदी है? केड़ी रिवर इक्वेटर नूं 2 बारी, समझदे ना इक्वेटर, जिवें आ अपना इक्वेटर है, एक रिवर है 2 बारी क्रॉस करदी है, एक बारी फिर 2 बारी। तो ये याद रखियो, आसन पता लग गया। अब वर्ल्ड दी सब तो लॉन्गेस्ट रिवर है 650 किलोमीटर। अफ्रीका दी रिवर 11 मुल्कां नूं क्रॉस करदी है। अमेज़न ये सब तो लार्जेस्ट रिवर है ते सेकंड लॉन्गेस्ट है। तो इत्थे फिर अपना आंसर आ गया कांगो। कांगो इहो जी रिवर है जिहड़ी इक्वेटर नूं 2 बार कट करदी है। कल्ला यही पॉइंट नहीं, नाल ये भी याद रख लियो भी यह रिवर वर्ल्ड दी डीपेस्ट रिवर है। डूंगी वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर, वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर भी यही है। ते अफ्रीका दी सेकंड लॉन्गेस्ट भी यही है। पहले नंबर नूं पता है केड़ी है? नाइल है, 650 किलोमीटर दी है। ते कांगो अपनी हैगी है 4300 ते 70 किलोमीटर, 4300 ते 70 किलोमीटर दी। इक्वेटर नूं 2 बार क्रॉस कर दी है। वर्ल्ड दी डीपेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट अफ्रीका दी, ठीक है। ये सारे पॉइंट रख लियो याद। चलो फिर चलदे आपां थियोसॉफिकल सोसाइटी। कहोगे भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स आपां हिंदुस्तान में आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, बहुत प्रार्थना समाज है, बहुत पढ़ने होंगे आप टेस्ट में, बहुत पढ़ी है। पहली टेस्ट सीरीज आप बहुत कवर भी किए है। तुसीं कहोगे भी इत्थे अमेरिका वाला क्यों पढ़ी जांदे आपां भी अमेरिका दी थियोसॉफिकल सोसाइटी असल दे विच ना जिहड़ी इन्हां दी फिलॉसफी सी, जिहड़ी थियोसॉफिकल सोसाइटी दी फिलॉसफी सी, सिद्धांत सी, वो मतलब हिंदूस एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी तो प्रभावित सी। तो ये अपने हिंदुस्तान चाहणगे कि ना मन्नियो पॉइंट अमेरिका दा पढ़ी इत्थे जानी है। तो ये फाउंड कीती सी अपने, एक तो रशियन लेडी है अपने आप है, एक रशियन लेडी है, एक अपना अमेरिकन बंदा है, मैडम ब्लवात्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट। ये नाम पूरा पढ़ो। एच.एस. ऑलकॉट ये इन्होंने एस्टैब्लिश की सी 1875 दे विच, किथे? न्यूयॉर्क। की एस्टैब्लिश कीता सी इन्होंने? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये की तो प्रभावित सी, किन्ना दी फिलॉसफी तो प्रभावित सी? हिंदूस एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो अपने हिंदुस्तान फिर आउणगे, याद रखियो। फिर इस सोसाइटी ने आपदा हैडक्वार्टर 1882 दे विच किथे लियांदा? इंडिया दे विच लियांदा। इंडिया च किथे लियांदा? इन अड्यार।
किथे आ निहाल मद्रास। ठीक है, ये सारे कीमती पॉइंट रखने आपां याद। 75 च बनी है, 82 च अपने आ गई। फिर एनी बेसेंट भी रलूगी, इन्हों बहुत संभालूगी, प्रधान बन जूगी, प्रचार करूगी। बाकी तो कांग्रेस वाला आ गया, तिलक गोखले तो फिर कहने की है, बड़े डेंजर बंदे हैं। आ गांधी का गुरु है, आ गांधी नूं बचाउण वाला आ गया फिर अपना तिलक, ये लाऊगा सिरा है ना। चलो ठीक है, फिर सवाल मिले अपने खत्म हो गए। ये नाल ही फिर अपने अज दी टैसट डिस्कशन क्लास हुंदी है समाप्त। नाल वधिया कापी पेन लैके बैठा करो, टैसटां दी अड्ड मेरे हिसाब नाल कापी ला लिया करो, क्योंकि सवाल सारे मिल ही जाते हैं। तो वह चंगी तरीके से प्रिंट मतलब आपदी कापी ते आपदी हत्थी कढ़ लिया करो, सारा सवाल लिख के प्रॉपर रिवीजन हो जाती है। सारा अद्धे घंटे की वीडियो है, अद्धे घंटे का सारा अपना काम होंगे। ठीक है, ये वधिया प्रैक्टिस अपनी होंगी है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर आप कल नूं आपां। सत श्री अकाल फिर सर।